السلام علیکم. میں ہوں شائستہ یاسمین اور سلسلہ ہے آؤ کریں باتیں تلاشیں حل. اور ہر ہفتے کے دن ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور ہم نے تھوڑا سا ٹائم چینج کیا ہے. یہ ٹائم ہم نے اس لیے چینج کیا ہے کہ ہماری جو ڈاکٹر طاہرہ ہے وہ آج کل جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہیں. وہ ابراڈ میں ہیں، خاص کر کے مطلب میں اب جگہ پتہ نہیں مجھے بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے، لیکن شی از ان دا نیو یارک. تو اب یہ ہے کہ ان کے ٹائم کے مطابق ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ پوڈ کاسٹ کریں. تو اس لیے آج ہماری ملاقات پاکستانی ٹائم جو ہے وہ 8 بجے ہو رہی ہے. اور ڈاکٹر طاہرہ میں آپ کو ایڈ کر رہی ہوں. آپ ہیلو ایڈ. ہیلو، السلام کیسی ہیں آپ؟ علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں دیکھ کے میں وہ گانا گاؤں. کب کون سا؟ کے بچھڑے ہم آج کہاں آ کے ملے. اچھا، کیسی گزر رہی ہے نیو یارک کی شام میں؟ صبح ناشتے ویسے فیس بک کے تھرو تو پتہ چلتا رہتا ہے، لیکن پھر ہاں مجھے نا یہاں آ کے نا تھوڑا سا موسم تنگ کرتا ہے کیونکہ میں نا یعنی ٹھنڈے موسم سے میں ایکلیمیٹائز نہیں ہوں اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا. تو یہاں آؤ تو یا بارش ہو رہی ہوتی ہے یا ٹھنڈ. ابھی جون میں بھی ٹھنڈ ہے، یعنی مجھے تو لگ رہی ہے، لیکن لوگوں کے لیے سمر ہے. تو وہ جو سمر ہے نا وہ پہنو ساڑے گوڈے گٹیاں چ بہ گئی ہے. اچھا میں سے 1 منٹ اپنی فیس بک پہ شیئر کر لوں. اچھا سے جاؤں میں اپنے اس پہ وہاں پہ تو چلی گئی ہوں. میں اپنے پیج پہ میرا خیال ہے نہیں جا سکتی. اچھا، دیکھیے آپ ٹرائی کریں. ان دا مین ٹائم میں ذرا تفصیلات بتا دوں. آج ہماری تیسری پارٹنر جو ہے وہ غائب ہے. وہ آج دوستوں کے ساتھ ہیں اور کیا کہیں بھائی، وہ دوستوں کو نہ نہیں کر سکتی اور ہم جو ہے وہ ایسے ایسے کہ ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار، ٹھیک آپ لوگ کسی طرح اکٹھے ہو جائیں تاکہ گپ شپ جو ہے وہ چلتی رہے. ڈاکٹر طاہرہ ہمارے ساتھ جتنی دیر میں وہ اپنا فیس بک لائیو کا دیکھتی ہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیل شیئر کر دوں کیونکہ ہمارا واٹس ایپ کے اوپر آپ کے تمام سوالات ہمیں ملتے ہیں. نمبر ہمارا ہے 0333019476. اس پہ آپ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، لیکن بہت سے سوالات ہمیں سوشل میڈیا پیجز کے اوپر بھی مل جاتے ہیں اور پھر ہم ڈاکٹر طاہرہ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہرہ آپ کا ان باکس جو کھچا کھچ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کے سوالات ہمیں فارورڈ کر دیں. پھر وہ فارورڈ ہوتے ہیں تو وہ والے سوال ہم کوشش کریں گے کہ آج جو ہے وہ ڈاکٹر سب کو طاہرہ سے کہیں پوچھیں. کہ پلیز جو ہے وہ اگر واٹس ایپ پہ بھیجیں تو میری اچھا زندگی علی، اگر کسی تھوڑی طرح میں دیکھتی ہوں کہ اگر علی سے میرا رابطہ ہوتا ہے بٹ میں نے ان دا فیس بک مین پیج پہ ٹائم. میرا خیال ہے میں نے وال پہ تو لگا دیا ہے، لیکن میرا خیال اچھا ہے جی، کہ شاید میں فیس بک پیج پہ نہیں جا پا رہی. وہ اب مجھے نہیں پتا، اچھا میں بھی تو اتنا ٹیک فرینڈلی نہیں ہوں نا، تو اس لیے چھوڑو. بس وہ جو وال پہ آ گیا بس وہی ٹھیک ہے. اچھا چل ٹھیک ہے تو ہم پروگرام شروع کرتے ہیں تاکہ بہت ساری باتیں کرنے والی پچھلے ہفتے کی بھی رہ گئیں اور وہ سارا کچھ ہاں تو کچھ ویسے سوال ایک جو سوال تسنیم صاحبہ نے کہا نا کہ یہ جو مرد اور عورتیں اپنے تجربات شیئر نہیں کرتے، یہ ایسا کیا دبا کے رکھنا ہے؟ کوئی خزانہ ہے جو جس کو کسی کی خبر نہیں ہونے دینی؟ کیا وجہ ہے کیوں نہیں شیئر کرتی اپنی کہانیاں؟ اس سے نفع بھی تو ہو سکتا ہے. یار شیئر کرنا تو لائک اس کا ایک پہلو ہے، لیکن ہاں اسے کنڈم کرنا اس سے بڑا پہلو ہے. لائک میں نے کل پرسوں کا کیونکہ میں بہت سڑی بیٹھی ہوں کل پرسوں میں نے ایک پوسٹ لگائی جس میں نے جسٹ یہ بات کی کہ عورتوں کی بہت فزیکل پرابلمز ہوتی ہیں پریگنینسی اینڈ پیریڈ سے ریلیٹڈ، جو کہ مرد
रात को कभी भी नहीं पता चल पाता कि हाउ पेनफुल दे आर और हाउ ट्रॉमेटिक और हाउ दे आर अफेक्टिंग देयर बॉडी। तो मैंने, चूंकि मैं बहुत चीजें मेरे जहन में आती हैं, तो मैंने कहा जैसे सिमुलेटर होते हैं कि जैसे मेडिसिन में हम मिमिक करते हैं चीजें, या जहाज चलाने के लिए हम मिमिक करते हैं, तो मैंने कहा इस तरह की अगर कोई चीज हम मिमिक करें जिससे हम मर्द हजरात को ये बता सकें कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कैरी अ प्रेगनेंसी फॉर 9 months एंड देन डूइंग ऑल द थिंग्स अलोंग विद दैट, यानी ड्राइविंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, खाना पका रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं, सास ससुर को कर रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, और उसके साथ आपकी बॉडी में एक नया ह्यूमन बीइंग भी है जिसका वजन भी है और जिसकी प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। उस पे इतने लोग जो हैं उन्होंने आके मुझे ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, आप इसमें क्या रियलाइज कराना चाहती हैं? अच्छा, वो जो मर्द हजरात बोरी उठा के हफीज सेंटर पे चढ़ते हैं, 20 किलो की बोरी, और 20 किलो 30 किलो की बोरी वालों, क्या तुम बोरी उठा के बाकी काम करते हो, खाना बनाते हो, या बीवी का काम करते हो, या बच्चों को संभालते हो, या बच्चों के पीछे भागते हो? I just said के feel, and then it was not only के मर्द थे इसमें औरतें भी पीछे नहीं रही। नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। रजकी और वाहवारी का शोर क्यों मचाना? अच्छा, अगर इतना नॉर्मल है तो फिर लोग इसमें मरते क्यों हैं? इतना नॉर्मल है तो फिर बुढ़ापे में औरतों की बच्चेदानी बाहर क्यों निकल आती है? इतना नॉर्मल है तो औरतों का फिसला क्यों बनता है? इतना नॉर्मल है तो पिशी पॉटी के प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? इतना नॉर्मल है तो 11 करोड़ औरत आज हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से अनीमिक क्यों हुई पड़ी है? इतना नॉर्मल है तो औरतें सारा वक्त एंजाइटी का शिकार क्यों रहती हैं? आप कम अज कम, ठीक है, अल्लाह मियाँ ने ये सिस्टम बनाया, हम एक्सेप्ट करते हैं ये सिस्टम बनाया, लेकिन इस सिस्टम को आप ना ओवर यूज करें। अब किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि सिस्टम बन गया है तो हर साल जो है वो अमल होना है, ठीक है। सिस्टम बन गया है तो आपके सिस्टम जब तक ये जवाब ना दे जाए, आपके उसमें से 14 बच्चे पक्के और 14 कच्चे निकालने हैं, ठीक है। अब मेरे जैसी खातून डॉक्टर होके अगर 3 फुल टर्म प्रेगनेंसीज और 3 मिसकैरेजेस कर सकती है, तो एक सोचे कि आम औरत जो घर में रहती है जिसके ऊपर बेइंतहा प्रेशर्स हैं, वो कितने बच्चे पैदा करती होगी और उन बच्चों का उसकी बॉडी पे कितना अफेक्ट होता है। अच्छा, एक औरत की शादी चले अर्ली मैरिज ना भी करें, लेकिन जैसे आजकल लोग कहते हैं 20-21 में कर दो, 20-21 में कर दो, 20-21 से लेके 50 तक उस औरत ने रिप्रोडक्टिव साइकिल में रहना है, तकरीबन 28-29 साल। 28-29 साल या उसने हमल करना है, या हमल के नतीजे में मिसकैरेज होना है, अबॉर्शन होना है, या उसको कॉन्ट्रासेप्टिव दवाइयां खानी है, यानी या हमल करना है या हमल से बचना है। तो 28-29 साल वो इस रिप्रोडक्टिव फेज में, जो कि उसकी यूथ है, वो सारा वक्त इन चीजों से स्ट्रगल करती है अलॉन्ग विद अदर मेंटल प्रॉब्लम्स। मेंटल प्रॉब्लम्स कहाँ से आते हैं कि औरत को अपना घर छोड़ना है, सबसे पहले वो अपना घर छोड़ के एक एलियन जगह पे जाके सेट होती है, और आप उसको रियलाइज ही नहीं करते कि दिस इज ए ट्रॉमा, दिस इज ए ट्रॉमा। अगर एक लड़के को आप छोड़ के एक मर्द को कहें कि चल दूसरे घर में चल के जाके रह, जिसमें जहाँ पे 8-10 अफराद और हैं, और उनमें जाके उनकी रूटीन के मुताबिक फिट हो, ठीक है, तो फिर मैं ये जानूं कि क्या है ये मेंटल ट्रॉमा, सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड वंस, ठीक है। उसके बाद आप एक ट्रॉमा में हैं, और प्लस ये कि जो अगला आपका घर है वो आपको सारा का सारा हार्ड टाइम देने के लिए बैठा हुआ है।
उन्हें फुल टाइम नौकरानी भी चाहिए, उन्हें फुल टाइम एक सबमिसिव सी औरत भी चाहिए जो आगे से किसी बात में हाँ ना करे, उन्हें फौरन से बेशतर बच्चे भी चाहिए, उन्हें अपने बेटा भी खुश देखना चाहिए, उन्हें साथ में ऐसी औरत चाहिए जिसके पास कोई डिमांड, कोई ख्वाहिश ना हो, ना वो सहेलियों से मिलने की बात करे, ना वो अपने मैके जाने की बात करे, ना वो कोई डिमांड करे, ना वो मुंह खोले, ना वो जवाब दे, वो एक डमी हो। तो जो लड़की 20-21 साल की उम्र में डमी बनती है और अलॉन्ग विद डमी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स देखती है, आप मुझे ये बताएं, आप उसके साथ हमदर्दी भी नहीं कर सकते? अपनी स्टोरियां सुनाना तो दूर के, ये नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते हाँ दीज आर द प्रॉब्लम्स। एक दुनिया मेरी वॉल पे आके कह रही है कि मैं तो चीजों को ओवर एग्जैजरेट करती हूँ, मैं चीजें जो हैं वो यूं करती हूँ, मैं शोर मचाती हूँ। आपको क्या पता कि आपकी औरत एक डॉक्टर के कमरे में जाके क्या कहती है? आपको क्या पता? और जो कुछ प्रिविलेज औरतें हैं जो शहरों में रहती हैं या जिनके घर इस कदर के स्ट्रेसेस नहीं हैं या जो बाहर चली गई हैं, दे आर जस्ट 2-3%। वो औरतें खुदा के लिए अपने भाषण लेके मेरी वॉल पे मत आया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को ब्लॉक करना, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को जवाब देना, मैं फजूल में बहस में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन you are seeing the world from your narrow glasses. Yes. You are not seeing the woman in a broader perspective. और मैं जिसने हर इलाके की और हर जमाने की औरत देखी है, गांव की औरत मैंने देखी है, मोहल्लों की औरत मैंने देखी है, और मैंने उनके प्रॉब्लम सुने हैं क्योंकि मुझे सुनने से इंटरेस्ट था. दिस वाज मी नॉर्मली बीइंग नॉट बीइंग ए डॉक्टर. मैं ऐसे ही, चूंकि मैं लिटरेचर में बहुत ज्यादा थी और मुझे लगता था कि हर बंदे के पीछे एक कहानी होती है, तो मैं कहानियां सुनने की बहुत शौकीन थी. तो this was a thing which added to my experience that I encourage people to speak and let me know and burst out what they are passing through. तो ये जो कुछ औरतें privileged ones या अपने नैरो एंगल से दुनिया को देखने वाली, जिन्हें हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है, या वो आदमी जिन्हें जो रियलाइज ही नहीं कर पाते. कितनी औरतें हैं जो शाम को घर से निकल सकती हैं कि मैं दोस्तों के साथ चाय पीने जा रही हूँ, ये बच्चे कोई और संभाले, जबकि मर्द को तो ऐसा कोई मसला नहीं है. दिस इज मी टाइम. आराम से घर से निकल गया, हाँ भाई मैं तो जरा फलानी की तरफ जा रहा हूँ, हाँ मैं तो जरा फलान जगह जा रहा हूँ. So it is their me time, it is their peace time. When women get me time or peace time, सिवाय कुछ प्रिविलेज औरतों के, कुछ मैं कहूँगी उनकी मेरे अपने इर्द गिर्द वाली औरतें, मेरे तबके वाली औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती. मैंने कभी अपनी बहनों को जाते हुए नहीं देखा. हाँ मैं जरूर जाती हूँ because I decided to live in a different way, but obviously it was not easy. हाँ मैं जाती हूँ, मैं दोस्तों के साथ जाती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि मैं शाम को कॉफी पीने जा रही हूँ, and then look at the women जो आती हैं मेरी वॉल पर लिखती हैं कि आप कितनी खुशकिस्मत हैं. और मेरा कहना यह है कि मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ, मैंने उसकी कॉस्ट पे की है. हर चीज की कॉस्ट होती है. अगर आप खुद से लड़ मर नहीं सकते, अगर आप खुद से स्टैंड नहीं ले सकते, तो औरत को इस दुनिया में कोई भी चीज प्लेट में रख के नहीं मिलेगी. And I'm talking about majority of women. The women who are outside of this, please stay away.
بٹ ڈاکٹر طاہرہ یہ والی چیزیں تو پھر وہی والی بات ہے نا کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ اس طرح کے موضوعات کو اٹھاتی ہیں. آپ نے کتنی کیس اسٹڈیز کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ بھائی آپ کو وہ خواتین یہ سٹوریز بتاتی ہیں اور پھر آپ اس کے اوپر ایک ڈسکشن جنریٹ کرتی ہیں. اس کے باوجود بھی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ لوگوں میں نہیں آتی اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی بس ہم نے نکاح کر لیا اور اب یہ کولو کی بیل کے ساتھ کے مترادف ہے, اس کو ہم نے باندھ دیا, یہ اسی کے گرد گھومتی رہے گی, اس کے علاوہ اس کی کوئی لائف نہیں ہے. یہ اتنا شدید فار گرانٹیڈ ہے کہ عورت کی زندگی ہی بس یہی ہے کہ وہ اسے ہم شادی کر کے لے آئے, اب اس نے دن رات کھانا بنانا ہے. اب کھانا بنانے سے میں تمہیں بتاؤں کہ میں اس وقت نیو یارک میں ہوں اور ظاہر ہے یہاں ہاؤس ہیلپ نہیں ہوتی اور ہم لائک خود ہی مل جل کے کرنا پڑتا ہے, بلکہ میں صاف بتاؤں کہ میں تو بہت کم کرتی ہوں. میری بس کریں, میں نے وہ فیس بک کے وہ کھانے دیکھے ہیں جو آپ نے لگائے ہوئے تھے, اچھی خاصی کوک ہیں آپ, پتہ نہیں کیوں اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر. نہیں, وہ مجبوری کے تحت. اگر میرے گھر کوئی آ رہا ہو تو پھر میرا جی چاہے گا کہ اب میں اس کی خاطر تواضع کروں کیونکہ میں اچھی ہوسٹ ہوں. میں کبھی بھی خوشی سے کچن میں نہیں جاؤں گی, ٹھیک ہے. اچھا اور تم سوچو کہ مجھے آئے ہوئے یہاں پہ تقریباً 2.5 ہفتے ہو گئے, میں نے ابھی تک چائے بنانے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور کل میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماما کیا ہاؤ بورنگ اٹ از کہ وہی روز اٹھ کے سوچنا ہے کہ آج کیا پکانا ہے, اور کچھ پکانا بھی ہے, ٹھیک ہے, اور سبزی کاٹنی ہے, گوشت صاف کرنا ہے, روٹی بنانی ہے. اور ماما تو اور ہم دونوں آپس میں ہنس رہے تھے کہ پاکستان میں عورتوں کی زندگی اس کے گرد گزر جاتی ہے. اب ناشتہ اچھا, یہ بنانا تو ہے. آپ کی بات کریے نا, مجھے ایک ایڈ یاد آ رہا ہے, پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں. یہ تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ جو پہلا کھانا بناتی ہے وہ کوئی میٹھا بناتی ہے, تو وہ اس کے سسر صاحب بڑے اس طرح سے کر کے نا اس کو ڈرانے والا ایک سسٹم ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں نیکسٹ ٹائم بناؤ تو زیادہ بنانا, جیسے وہ لڑکی تو صرف اس گھر میں کھانا بنانے کے لیے آئی. تو ایڈ کے ذریعے بھی اس کی پروموشن ہوتی ہے. دیکھو ایڈ وہی لوگ بناتے ہیں نا جو ہماری سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ادھر یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے نا, یہی کچھ بھرا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں ایکسپیکٹڈ ہی یہی ہے کہ بہو آئے گی تو گھر سنبھالے گی. ہائے کیا پہلے والے سارے لوگ معذور تھے گھر میں؟ آپ بہو کے آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے, اور بہو کے آنے کے بعد پھر آپ فوراً ہی سارے اپنی اپنی جگہوں پہ, کوئی کرسی پہ جا بیٹھا, کوئی صوفے پہ, اور بہو نے آ کے 8-10 لوگوں کا کھانا بنانا شروع کر دیا. ہاں ہاں, یعنی اس کو کیا سزا ملی ہے اس بندے سے شادی کرنے کی؟ ٹھیک ہے, میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دس از اے سزا, کہ پنشمنٹ, کہ وہ شادی کا جو illusion ہے نا, illusion کہ ہاں پیارے پیارے کپڑے, پیاری پیاری جیولری, میک اپ, فلانا, وہ لڑکیاں جس میں آ کے پھنستی ہیں, وہ بہنوں, بچیوں, پیاریوں, وہ خالی 1.5 ہی ہے. اس کے بعد آپ سوچ لو, آپ نے اس سارے 8-10 کے خاندان کا جو اجڑ ہے نا, اس کی آپ نے کرنی ہے خدمت, ٹھیک ہے. اور یہ سمجھا جاتا ہے, وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پہ احسان کیا ہے کہ اسے شادی کر کے لایا ہوں. سسرال والے سمجھتے ہیں کہ ہاں اس عورت سے ہم نے اس کو گھر لے کر آئے تو یہ ہمارا احسان ہو گیا. اب یہ ہماری ہے بے دام غلام. تو یہ جو بے دام غلام ہے, یہ سارا وقت کھانا بھی بنائے, یہ ہماری چاکری بھی کرے. اچھا یہ پھر بیٹے کی فرمائے. اچھا ایک اور چیز جس پہ مجھے کہنا ہے, خیر ہمارے کوسچنز رہ جائیں گے, کم ہو جائیں گے, لیکن آتے ساتھ ہی آپ کو بچہ چاہیے, دین آپ کو ہر سال بچہ چاہیے, اور اس کے بعد یو آر سیئنگ ٹو یور وائف کہ یو آر ناٹ سیٹسفائنگ می. اب آپ پہلے جیسی ہی رہی. ہائے, جس کے جسم سے آپ نے آتے ساتھ ہی بچہ نکلوا لیا, اور اس کے بعد آپ نے ہر سال بچہ نکلوایا, تو آپ کو کیا خیال ہے کہ وہ کیا پلاسٹک کی اسی گڑیا ہے؟ طرح نہیں پلاسٹک کی گڑیا کہ پہلے وہ جی اسٹریچ ہو کے بچہ نکلے گا, اور اس کے بعد وہ پلاسٹک پھر اپنی جگہ پہ چلا جائے گا. یعنی
अब मैं तो हैरान रह जाती हूँ ऐसी बातें सुन के कि हाउ स्टूपिड, मैं स्टूपिड कहूंगी, हाउ स्टूपिड एंड इडियोटिक दे आर, कि आइदर अगर आपको इतने मजे चाहिए तो आप अपनी बीवी से इतने बच्चे ना पैदा करवाएं, ठीक है, एक आध बच्चा पैदा करवाएं और उसी में सेटिस्फाई कर, नहीं, बच्चों की भी आपको लाइन चाहिए, और उस लाइन के बाद आप ये समझते हैं कि इस औरत का जो जिस्म है वो प्लास्टिक का बना हुआ है और वो प्लास्टिक से फिर वैसा ही हो जाएगा, तो उन्हें मजा वैसे ही सुहागरात वाला आना चाहिए। सॉरी टू से, टू बी वेरी, बट ये दिस इज सो सैड, ये मैंने भी बहुत सी स्टोरीज सुनी है और जिनको फिर घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, और वो लिटरली रोती हैं कि मतलब हम अपने हस्बैंड को समझ नहीं आती कि जब वो इस तरह की डिमांड करते हैं हमसे, तो फिर हम इस कि या तो बच्चा ना पैदा करते, और अगर बच्चा पैदा कर लिया तो कम से कम इतनी इज्जत तो दें कि जिसकी ये मैं हकदार हूँ। तो बात ये है, मैं इस सिलसिले में औरत को कहती हूँ कि उसके अंदर ये आग होनी चाहिए कि अगर आपको ये कोई कहे तो आप उसे कहें कि मुझे भी मजा नहीं आ रहा, तुम्हारा भी पेट बहुत निकल आया है, ठीक है, अपना पेट दो, और वाकई लोगों के, और मुझे भी तुम्हें देख के मजा नहीं आ रहा, तुम बिल्कुल गंजे हो गए हो, ठीक है, मैंने गंजे आदमी से शादी नहीं की थी। लाइक यू should know how to respond and how to bring them down if somebody is humiliating you. If someone is humiliating you, then you are entitled to say कि तुम्हारी भी तोंद निकल आई है बाबा, तुम्हारा भी गंज निकल आया है, तुम भी अच्छे नहीं लग रहे मुझे, ठीक है। मैंने इस आदमी से, मैंने एक लड़के से शादी की थी, मैंने इस आदमी से, तुंदीले आदमी से शादी नहीं की थी। तो औरत को समझ आनी चाहिए कि उसमें, और फिर अगर कोई उसे कहे ना कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा, तो उसे को निकाल के देखो, फिर देखो निकाल के, मैं अभी गली में जाके तमाशा लगाऊंगी, मैं तुम्हारी खानदान में तमाशा लगाऊंगी, मैं उन्हें बताऊंगी कि ये क्या। औरत को पता होना चाहिए कि घुट घुट के जिंदगी नहीं गुजारनी। अगर उसको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसे चाहिए वो छत पे चढ़ के शोर मचाए, मार गया जे, मार गया जे। नहीं डॉक्टर ताहिरा, आपको ये हकीकतें और सच में ये बहुत तज़हीक आमेज जुमले लगते हैं कि जब आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर जो है वो आपके बच्चों की पैदाइश के बाद इस तरह की गुफ्तगू करे और आपको इतना बिलिटल करे। सो क्या आपको लगता है कि समाज के अंदर कोई एक्सेप्टेबिलिटी या कोई चेंज इस हवाले से आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि शोर तो सारे सुनते हैं खवातीन के पीटने का। देखो, जब से मैंने लिखना शुरू किया है, मुझे 4 साल हो गए हैं लिखते हुए, और मैंने बहुत खुल के लिखा, खुल के बात की इस बारे में। शुरू में ये था कि मुझे बहुत ज्यादा एब्यूजिव कमेंट्स मिलते थे, अब थोड़े से एब्यूजिव कमेंट्स कम मिलते हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत से मर्द हज़रात, I must appreciate them, they come on my wall and they write कि थैंक यू वेरी मच, हमें पहली दफा इस पर्सपेक्टिव का पता चला है। तो जिस दिन मैं बहुत ज्यादा तंग पड़ूं या इरिटेबल महसूस करूं, उस दिन मैं सोचती हूँ कि देखो, अगर किसी एक औरत का शौहर भी ये रियलाइज कर ले और किसी एक लड़की का हस्बैंड भी ये जान ले और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करे, तो आई थिंक दैट my sayings will be awarded। और मेरी जो इतनी कोशिश है कि लोग रियलाइज कर सकें कि औरत क्या है, वो क्या महसूस करती है, and she is as human as you are। उसका भी उतना ही दिल करता है कि वो किसी वक्त अगर सुबह उठ के कहे कि खाना नहीं बनाना चाहती तो ना बनाए, और किसी वक्त वो कहे कि नहीं आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं अपनी अम्मी से मिलने जाऊं, तो उठ के चली जाए, उसे किसी की इजाजत की जरूरत ना पड़े, जैसे कि एक मर्द इजाजत नहीं लेता किसी भी बात के, ठीक है। तो ये जो एक फ्रीडम का एहसास है ना,
इजाजत ना लेना, चाहे वो छोटी सी बात के लिए भी हो, बताने में और इजाजत लेने में फर्क है। देखो ये मैं आई वॉज वेरी स्मॉल, बीच में इतनी बातें आ जाती है ना, तो मैंने कभी अपनी अम्मी से कहना कि अम्मी मैंने फलां जगह जाना है, तो अम्मी ने जहाँ उनकी मर्जी ना होती वो कहती जाओ अपने अब्बू से जाके पूछो। अच्छा, अब तो जब मैंने पूछा तो अब्बू की तरफ से कभी, यानी ना तो वो कभी नहीं करते थे, लेकिन वो यानी ही यूज्ड टू बी साइलेंट, के बस के समझो कि वो खामोश ना। थोड़े अरसे बाद मैंने सीखा कि मैंने ये नहीं पूछना कि मैंने जाना है, मैं जा रही हूँ, मैं जाऊं कि मैं जाऊं, मैंने कहना है मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है। तो उसके बाद से, और नॉर्मली वो ये होता था कि मुझे इंडियन मूवीज देखने का बहुत शौक था, तो मोहल्ले में जब वीसीआर लगता था तो मेरा बहुत होता था कि मैंने फिल्म देखने जाना है, तो वो नॉर्मली मेरे पेरेंट्स को ये इसी तो मैं आके अम्मी से पूछती, तो अम्मी कहती अच्छा जाओ अब्बू को बता के आओ। तो अब्बा जी के कमरे में मैं जाती, भागती दौड़ती और कहती अब्बा जी मैं चली। अब वो बेचारे ना वो मेरी तरफ ऐसे ना देखते ही रह जाते कि ये नहीं पूछता अब्बा जी मैं जावा, अब्बा जी मैं चल लिया। और then I realized this thing, this became so firm in me कि मेरा ख्याल ये है कि मैंने फिर बड़े होकर ये बात बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि मुझे ये करना है, मैंने हर जगह अपना फैसला, यानी कि मैं ये कर लूं, मैंने हर जगह अपना फैसला सुनाया कि ये मुझे करना है। जाहिर है उसकी रिपरकशन थी, हमारी सोसाइटी कहाँ बर्दाश्त करती है, बाप ने तो लेकिन ये है बर्दाश्त कि करते औरत को जो है वो खुद अपना स्टैंड लेना है। हाँ। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस जो हमें रिसीव हो रहे हैं, हमारे देखने वाले माशाल्लाह अपने कुछ अंदर से गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन साइमा रानी ने सवाल किया है कि मुझे मेंसेस में बहुत दर्द होता है और खून भी जमा हुआ निकलता है, प्लीज मुझे कोई हल बता दें, मुझे दर्द क्यों होता है मेंसेस में। देखो मैं अब ये जो भी है, मैं माहवारी से रिलेटेड किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। आप मुझे माहवारी से रिलेटेड सवाल कोई पूछता है तो मुझे ये अपनी बेइज्जती लगती है, साफ बात है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे एक छड़ी दे मारी है कि जिस डॉक्टर ने माहवारी पे एक पूरी किताब लिख दी हो और उसमें 52 मजमून हो जो हर चीज कवर करते हो, और अगर वो आप 52 मजमून पढ़ लें तो आप माहवारी एक्सपर्ट मेरे जैसे बन जाएं, उसके बाद भी अगर मुझे माहवारी में बात करनी पड़े तो इट्स ह्यूमिलेशन फॉर मी। और मजे की बात ये डॉक्टर तायरा, हमारे पास मैक्सिमम सवाल माहवारी से रिलेटेड आते हैं। मैं ये चाहूंगी कि ये सब लोग पहले मेरी किताब पढ़ें, ठीक है। इस किताब को पढ़ के अगर कोई चीज समझ ना आए तो उससे कहें कि देखें हमने आपका ये मजमून पढ़ा था, हमें उसमें से ये बात समझ नहीं आई, स्टेप नंबर 2 पे चलिए। मुझे स्टेप नंबर 1 पे मत खड़ा रखें, मैंने अभी छत पे जाना है, मैं पिछले 4 साल से पहली सीढ़ी से ऊपर जा रही, मैंने पहली सीढ़ी शुरू की थी 4 साल पहले, और अगर 4 साल बाद भी मैं पहली सीढ़ी पे ही बैठी रहूंगी तो मैं और आप आगे कैसे चलेंगे। इसलिए ये किताब उसके लिए जरूरी है कि वो किताब जो है वो जरूर पढ़ें। ये किताब बेचने का ढोंग नहीं है, मुझे इस किताब से कतई कुछ वसूल नहीं होगा, ये आपकी इन्फो के लिए मैंने इतनी मेहनत की है और उर्दू में की है। तो अगर आप इससे फायदा नहीं उठाते, अगर आपके अंदर आग लगी हुई है, अगर आपके अंदर तकलीफ है, तो फिर आप वैसे हाथ पांव मारें जैसे एक डूबता हुआ बंदा हाथ पांव मारता है। अच्छा डॉक्टर तायरा, किताब कहाँ से मिलेगी ये बता दें। आपके लिए एक नंबर है, वो मैं नंबर आपको बता देती हूँ, उस नंबर पे कांटेक्ट करें, तो वो नंबर इन लोगों को उस पे ऑर्डर भेजें, वहाँ जैज कैश का वो है नंबर मैं आपको अभी बता देती हूँ जनाब। और अच्छा पता है ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सी जो अगर देखने वाले हैं, अगर आप लोग ये किताब पढ़ेंगे बहुत
آسان زبان میں لکھی گئی ہے. ہر چیپٹر کے اندر ایک کیس اسٹڈی ہے اور اس کیس اسٹڈی کے بعد پھر ڈاکٹر طاہرہ نے حل بتائے ہیں کہ یہ کیوں ہوتے ہیں, یہ اس کو کس طرح سے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے, اور اس کے اندر وہ فیلنگز ہیں جس سے آپ اس ریلیٹ کر سکتے ہیں. مزے کی تو بات ہے آپ بھائی, وہ خشک نہیں ہے. بہت بہت انٹرسٹنگ. آپ یقین کریں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے خود سے اس تمام چیزوں کے جوابات آہستہ آہستہ سے ملنے شروع ہوئے. لیکن وہی والی بات کہ وہ پہلا سٹیپ یہی تھا کہ اس کتاب کو پڑھیں. اس کے اندر وہ تقریباً آپ کیا کہتی ہیں 52 یا 56 سٹوریز ہیں جو مضمون, جی 52 سٹوریز ہیں جس پر ڈاکٹر طاہرہ نے لکھا ہے, اور بہت آسان زبان ہے. آپ اپنے مسائل اس کو دیکھ کے, اور آج میں یقین کریں آج میں میرے خیال سے کافی سوال ایسے پروگرام میں شامل کروں گی جس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. بالکل. نمبر ڈاکٹر طاہرہ فون نمبر 0325 جی 8169 8169 395. 395. ٹھیک ہے, یہ نمبر جو ہے پبلشرز, ان کو کانٹیکٹ کریں. اس کی قیمت شاید میرا خیال ہے 500 یا 600 ہے. باقی جو پوسٹل خرچ ہوتا ہے اب اس مہنگائی کے دور میں, جہاں چاٹ کی پلیٹ جو ہے وہ آ رہی ہے 250-300 کی, اور اسی طرح تو آپ سوچیں کہ کتنے ریزنیبل. اگر لوگوں کو یقین آئے تو میں انہیں بتا سکتی ہوں کہ اس پہ میں نے اپنی جیب سے پیسے لگائے ہیں, اور یعنی کہ جیب سے پیسے لگا کے میں بانٹ رہی ہوں صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کی فلاح ہو جائے, اور جو میں نے اتنی محنت کی ہے اس محنت کا مجھے صلہ مل جائے. میں اب سب سے یہ کہوں گی کہ اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس بارے میں لکھیں, جیسے ابھی 2 لوگوں نے مجھے لکھا ہوا ہے اٹرا کے بارے میں لکھیں, اور دوسرے نے مجھے لکھا ہوا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں لکھیں. میں بتا کے تھک گئی ہوں کہ پیارے خواتین و حضرات, میں تقریباً 600 ایسیز لکھ چکی ہوں, اور یہ سارے ٹاپکس میں کور کر چکی ہوں. اٹرا میں کور کر چکی ہوں, پوسٹ پارٹم ڈپریشن کور کر چکی ہوں. اچھا جب میں کسی کو کہتی ہوں کہ یہ آپ میری وال پہ جا کے پڑھ لیں تو اس کے جواب میں مجھے کہا جاتا ہے لنک دے دیں. آپ لنک بھی نہیں خود ڈھونڈ سکتے, آپ میری وال پہ جا کے اسکرول بھی نہیں کر سکتے. یعنی میں سارا دن اتنی فارغ ہوں کہ میں اگر آپ مجھ سے کوئی چیز چاہتے ہیں تو میں اس کا لنک آپ کو بھیجوں اور آپ بیٹھ کے حلوہ نہیں اسے کھا لیں. یہ ان کو محنت کرنی پڑے گی, یہ ان کو محنت کرنی پڑے گی. ساری کتاب میں وہی والی بات ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ماہواری سے ریلیٹڈ, پھر بھی ہم اوبیسلی سوالات تو شامل کریں گے, لیکن یہ محنت ان کو کرنی پڑے گی. ڈاکٹر طاہرہ میں سوال شامل کر لوں اگر. اب میری اگلی کتاب آ رہی ہے جو کہ وجائنا اور ڈلیوری کے متعلق ہے, ٹھیک ہے. اب جتنے لوگوں کے کیسز ہیں زچگی سے ریلیٹڈ اور وجائنا سے ریلیٹڈ, انہیں وہ پڑھنی پڑے گی. میں آپ کو ہر چیز یہاں پہ اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکتی جس طرح سے کتاب میں. آپ جب تک میری کتابوں سے, میری وال سے, میرے مضمونوں سے رشتہ نہیں جوڑیں گے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک دن اٹھتے ہیں اور ایک سوال دے مارتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں. آپ کو اپنی صحت پہ, اپنی باڈی پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے, اور اس کو ایسے سیکھنا ہے جیسے آپ کلاس 1, 2, 3, 4 سیکھ کے اگلی کلاس میں چل جاتے ہیں. پلیز کلاس 1 کا سبق سیکھ لیں تاکہ ہم اگلی کلاس میں چلیں. بالکل. اچھا, اور یہ جو سوال میں شامل کرنے جا رہی ہوں, یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میری شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک بچے نہیں ہیں, میری عمر 37 سال ہے. یہ ان کے شوہر نے لکھا ہے. میری بیگم کی عمر 30 سال ہے, میڈیکل تقریباً دونوں کا کلیئر ہے. ڈاکٹر صاحبہ سے کسی طرح رابطہ ہو سکتا ہے, میں ان کو میڈیکل ہسٹری چیک کرا سکتا ہوں. 9 سال سے اگر حمل نہ ہو رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی. اگر سب کچھ ٹھیک ہو, کیونکہ اب میرے پاس رپورٹس نہیں ہیں, اگر سب کچھ ٹھیک ہو اور اس کے باوجود بھی حمل نہیں ہو رہا تو اس کا نام ہے ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی. اور 35% کیسز میں
कोई वजह नहीं होती। तो जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है उसके लिए आपको इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलना है। पहले वो आपको हो सकता है वो दवाइयां वगैरह आप यूज कर चुके हों, और उसके बाद अगला स्टेप जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए पाकिस्तान में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ सेंटर्स हैं, उन पे आप जाके कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी होना काफी महंगा वो प्रोसेस है, 5 से 6 लाख रुपया लगता है, और फिर भी वो जरूरी नहीं वो सक्सेसफुल हो। तो यानी आप सबसे आसान काम ये है कि बच्चा चाहिए तो बच्चा अडॉप्ट करो। इतने बच्चे रुल रहे हैं, और मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, पालने की मोहब्बत होती है, पैदा करने की नहीं। पैदा करके तो आपको अगले दिन बच्चा जो है वो आप इतनी तकलीफ में होती है कि आपको जहर लग रहा होता है। वाकई उस वक्त तो वो समझ नहीं आ रही होती। अच्छा, ये रिया का एक सवाल है डॉक्टर तायरा, वो ये कह रही है मेरी शादी को 2.5 साल हो गए हैं, 2 मिसकैरेजेस हुए हैं, लास्ट को 1.5 साल हो गया है, अब कंसीव नहीं हो रहा, मुझे हाइपोथायरॉइड है, थायरॉक्सिन से कंट्रोल है, बाकी मेरी रिपोर्ट्स FSH प्रोलैक्टिन, और फिर वो कह रही है मैं 35 साल की हूँ, प्लीज मैम मुझे गाइड कर दें। अगर 35 साल हैं तो इनको चाहिए कि ये किसी इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट से जाके मिल लें। 2 मिसकैरेजेस हुए हैं तो अब मुझे उसकी वजह नहीं पता। अगर वजन ज्यादा है तो वजन कम करें, और पीरियड्स में अगर वो है कोई गड़बड़ ताकि वो ठीक हो जाए। इनफर्टिलिटी का जो इलाज है वो काफी मुश्किल इलाज है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसके लिए बहुत आहिस्ता और बहुत परसिस्टेंस रखनी पड़ती है। ये स्लो एंड स्टेडी, ये नहीं होगा कि आप दिन जाएं और अगले दिन हमल हो जाए। हो सकता है आपको डॉक्टर के क्लिनिक के 10 चक्कर लगाने पड़े, और उनके जो स्कैन्स हैं वो 10 दफा कराना पड़े। अच्छा शाइस्ता, मुझे ना एक ख्याल आ रहा था, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे पर्सनली दिखाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जी आप बताएं, हम आपकी पर्सनल टाइम देना चाहते हैं, फीस पे करेंगे और ये और वो। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे सब लोग जो मुझे पर्सनली दिखाना चाहते हो, उनसे एक चीज तो ये है कि वो इस मेरे से दिखाने के बाद ये ना समझें कि सारे का सारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि मैं सीन पे मौजूद नहीं हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं उनके सारे टेस्ट एवेलुएट कर सकती हूँ, हिस्ट्री देख सकती हूँ, एडवाइसेस दे सकती हूँ, दवाइयाँ भी लिख के दे सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी जो टेस्ट वगैरह कराने हैं वो उन्हें लोकल कहीं से करा के मुझे दिखाने पड़ेंगे। तो ये एक, और हर अपॉइंटमेंट का टाइम अलहदा से होगा। तो अगर लोग इस तरह करने के लिए तैयार हैं तो हम इस बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इट विल नॉट बी फ्री, बिकॉज मैं पहले ही इतनी हेक्टिक लाइफ गुजार रही हूँ। उस हेक्टिक लाइफ में से अगर कोई दूंगी इस तरह डेडिकेटेडली 1-to-1, देन इट विल बी पॉसिबल। ऑलराइट, डॉक्टर साहिबा ये कह रही है कि एक सवाल हमारे पास है, किसी बच्चे को शुरू से ही हैवी पीरियड्स हों तो इसका क्या इलाज है? बच्ची का रंग बिल्कुल सफेद पड़ जाता है, कई वक्त के साथ साथ कमजोरी या खून की कमी का शिकार ना हो जाए बच्ची, क्या हैवी पीरियड्स को कम किया जा सकता है? कोई इलाज है? किया जा सकता है। खानदानी मंसूबाबंदी की जो गोलियां जिन्हें फैमिला कहते हैं वो आप 3 से 6 माह तक खिला सकती हैं। फैमिला के हवाले से बल्कि मुझे किसी बच्ची ने एक तस्वीर भेजी थी कि ये कब यूज करनी है। जी हाँ। उसमें 28 गोलियां होती हैं, 21 गोलियां जो है सफेद होती हैं, 7 जो है वो ब्राउन होती हैं। तो ये माहवारी के 5वें 6ठे दिन से आप पहला पैक यूज करते हैं और उसके बाद उसे मुसलसल यूज करते रहते हैं, क्योंकि जो ब्राउन है वो प्लेसिबो कहलाता है और उसी के दरमियान में पीरियड्स आ जाते हैं और उसके बाद वो मुसलसल 28 दिन चलते रहते हैं। तो मैंने इसीलिए आपको तस्वीर भेजी थी किसी हवाले से उनसे। तो जिस बच्ची का ये कह रही हैं, इन्हें चाहिए कि ये बेटी को एक और चीज जो है कॉन्स्टेंट फोर्ट की जो गोलियां हैं वो
माहवारी ज्यादा होने की सूरत में अगर सुबह दोपहर शाम खाई जाए तो उससे माहवारी का खून जो है वो बहुत कम हो जाता है, लेकिन प्रोवाइडेड के साथ में कोई और वजह ना हो। ये दवाइयाँ और गोलियां सारी तब दी जाती हैं जब बाकी सारी बात रूल आउट कर दी जाए, यानी कोई रसोली ना हो, कोई और चीज ना हो, तो तब ये पॉन्सन फोर्ट भी दी जा सकती है और फैमिला की गोलियां भी 3 से 6 माह दी जा सकती हैं। लेकिन बच्ची का हीमोग्लोबिन चेक कराएं, बच्चियों का हीमोग्लोबिन 12-13 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं मेल हजरात से ये कहूंगी कि खातून के अंदर इतना खून बनता नहीं है जितना हर महीने निकल जाता है। तो क्या कभी इन लोगों ने सोचा कि इनके जिस्म से तो कोई खून खारिज नहीं हो रहा, तो वो उस ट्रॉमा या उस वीकनेस से नहीं गुजरते जिस वीकनेस से बच्ची, लड़की, औरत हर महीने गुजरती है, और अभी एक रिकवरी हो नहीं पाती तो अगला महीना फिर आ जाता है, और अगले महीने की रिकवरी नहीं हो पाती तो अगला महीना फिर आ जाता है। और हर महीने की जो इरिटेबिलिटी है, इरिटेशन और वीकनेस, वो अलहदा से है। तो क्या कभी किसी मर्द हजरत ने ये सोचा कि ये औरतों को जो इतना माहवारी का खून पड़ता है, क्या ये इनके जिस्म में इतना बन भी रहा है कि नहीं? जबकि हमारे यहाँ खवातीन की डाइट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, और बल्कि डिस्करेज किया जाता है कि तू भी करना खा के, और बंदा रोटी चाहिए वो ते क्या सी वजन चुकन, ठीक है। अब वजन की तो मैंने ना वो हफीज सेंटर में जो 40 किलो की बोरी है ना, ठीक है डॉक्टर ताहिरा, ये 40 किलो की बोरी प्रोग्राम की शुरू से हमने अपनी कमर में लाती है। बिल्कुल। मैंने उनसे कहा ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਵੀ 40 किलो ਦੀ बोरी ਤੈਨੂੰ चुक के दिखा दूंगा किसी तरह। वैसे अच्छा जो है कि खवातीन जो काम करती हैं वो भी उससे कम नहीं होते। ट्रू। डॉक्टर ताहिरा, हमारे पास नवीदा जमील साहिबा पूछ रही हैं, आई एम 39, आई हैव 2 daughters, एक 1.5 year old है, छोटी बेटी की पैदाइश से पहले 2 early miscarriage हुए, should I go for the 3rd pregnancy? नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। 2 बच्चे खुशहाल घराना, बिल्कुल। और 39 की एज के बाद तो वैसे ही जो है वो नहीं करना चाहिए। बच्चे पालने नहीं है क्या, अभी पैदा कर रहे हैं, 11 साल बाद आप 50 साल की हो जाएंगी तो इन बच्चों की टीन एज कौन भुगताएगा? चिड़चिड़ करते बच्चों को, जितने टीन एज बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, वो 50 साल की उम्र औरत की उम्र अपनी चिड़चिड़ाहट बर्दाश्त करेगी, उन बच्चों की चिड़चिड़ाहट बर्दाश्त करेगी, और उनके लिए आपका सेहतमंद रहना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, एक हमारे पास सजेशन आई थी, वो ये कह रही थी कि डॉक्टर ताहिरा काज़मी तक पैगाम पहुंचाएं कि माओं के लिए सेशन रखें जिसमें बालिग होती बच्चियों के बारे में गाइड करें, पीरियड्स के मसाइल क्या होते हैं, 11-12 साल की। वो सारी माएँ पहले मेरी किताब पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद मैं सेशन भी कर लूंगी। वो सारी माएँ पहले अपना होमवर्क करके आए, ये अब स्कूल है, ठीक है, अब इस स्कूल में पहले इस किताब से होमवर्क करके आए और फिर उसके बाद मुझसे सवाल पूछें। अब मैं वो वाली टीचर नहीं हूँ जो सारे स्टूडेंट्स ने खेत सवा सबक याद नहीं किया या हर रोज मेरे को रोज सवाल। हूँ टीचर जड़ी ना वो औखी हो गई है। ये वो वाले पेरेंट्स है ना जो टीचर को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये टीचर ने ठीक सिखाया। अच्छा, आप सारी माएँ ये पढ़ें, सीखें, उसके बाद फिर मुझे बकायदा इस तरह पूछेंगे, डॉक्टर साहिबा सभा नंबर फलां पे आपने ये बात लिखी है तो इसका क्या मतलब है? इंशाल्लाह ये वक्त भी आएगा। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, एक है कि मेरी रिपोर्ट आई है पैप टेस्ट में LSL है, तो मैं कुछ दिनों से बहुत फिक्रमंद हूँ, क्या आप बता सकती हैं कितना नुकसानदेह हो सकता है? अभी मेरे बच्चे भी नहीं। अच्छा, ये LSIL जो होता है ये सर्विक्स की एक प्रॉब्लम होती है। इसमें 2-3 तरीके होते हैं। इसमें यह है कि ये लोकल गायनोकोलॉजिस्ट को दिखा के लोकल एग्जामिनेशन करवाएं अपने सर्विक्स का, और उस एग्जामिनेशन के मुताबिक वो गायनोकोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगी कि रिपीट पैप्स में होना चाहिए, क्या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कंट्रोल करके रिपीट पैप्स में होना चाहिए, या एक टेस्ट है कोलपोस्कोपी या कोलपोस्कोपी होनी चाहिए।
تو وہ گائنیکولوجسٹ ان کو گائڈ کر دیں گی. نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ لوکل ایگزامن کر کے اگر کسی کا ایسا ٹیسٹ آئے اور اس کے بعد انفیکشن کنٹرول کر کے دوبارہ کرتے ہیں, اور اگر دوبارہ بھی LSIL آئے تو پھر ہم کولپوسکوپی کر دیتے ہیں اور اس پہ دیکھتے ہیں. وہ اس کے پھر اگلے اسٹیپس ہوتے ہیں. Alright. اچھا, یہ ہمیں ایک اور کوشچن ہے. فرسٹ مس کیریج سیکنڈ منتھ میں ہو گیا تھا, گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے. سیکنڈ بیٹا وہ چائلڈ, اور تھرڈ بیٹی بھی نارمل پیدا ہوئی, بٹ 18 ڈیز کی ہو کر فوت ہو گئی. ریزن سمجھ نہیں آیا کیونکہ بالکل صحت مند تھی. یہاں سب بولتے ہیں کہ 18 کا مرض ہے. اس حوالے کا سے مطلب یہ لوگ سمجھتے ہیں ریپیٹڈ مس کیریجز یا ارلی نیونیٹل ڈیتھ. ہمارے یہاں پہ ارلی نیونیٹل ڈیتھ بہت کامن ہے, کیونکہ جو نیو بورن بیبیز ہیں اسے کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کو تو دکھایا نہیں جاتا, اور نہ ہی اس کی کسی جو بھی اس کی کیئرنگ انسٹرکشنز ہیں وہ ملتی ہیں. ہو سکتا ہے بیبی کو کوئی جینیٹک ڈس آرڈر ہو سکتا ہے بیبی کے ساتھ کچھ اور ہوا ہو, ہمیں نہیں پتا. 18 کا مطلب یہ ہے کہ مس کیریجز آپ کو ہوئے ہیں. مس کیریجز کے میں نے ابھی لکھا تھا, مس کیریجز پڑھ لیں, میرا مضمون 18 والا مضمون ہے وہ بھی پڑھ لیں, اور اس کے اکارڈنگلی پڑھ کے سمجھ کے اس کے بعد اگر سمجھ نہ آئے تو پھر کوشچن کریں. اوکے. ایک اور سوال ہے جی. ڈاکٹر طاہرہ یہ کہہ رہی ہے میری عمر 38 سال ہے, میرے 2 بچے ہیں جو نارمل ڈیلیوری سے ہوئے, ایک 6 سال کا ہے, ایک 4 سال سے تھوڑا اوپر. آپ کی تحریروں سے میں نے رہنمائی لی ہے اور مجھے اندازہ ہوا کہ میرا یوٹرس ذرا سا باہر نکلتا ہے, ہاتھ سے دبانے سے واپس جاتا ہے. میں سلسلے میں رہنمائی چاہتی ہوں, کیا اب مجھے کرنا چاہیے؟ بالکل. میں اب بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں ہاں یہ تو نارمل عمل ہے, فلانا تو نارمل عمل ہے, تو پھر یہ بچے دانی ڈھیلی کیوں پڑ جاتی ہے؟ ذرا مجھے آپ یہ بتائیں. ہاں نارمل عمل ہے, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس اور اس کی ریپرکشنز عورت کو ہی سہنی پڑتی ہیں. نارمل ڈیلیوری کے بعد بچے دانی ڈھیلی پڑ جاتی ہے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, باہر آنا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کا شروع میں اگر وہ کم باہر آئی ہے اور کم ڈھیلی پڑی ہے تو میں ایک انٹرنیٹ پہ دیکھیے گا کیگل ایکسرسائزز آئیں گی, KEGAL, کیگل ایکسرسائزز کریں, اپنا وزن کم کریں, قبض نہ ہونے دیں, زمین پہ بیٹھ کے پوٹی نہ کریں, زمین پہ بیٹھ کے پوچھا نہ ماریں, وزن نہ اٹھائیں, اور ایکسرسائزز کرنی شروع کریں. کیگل ایکسرسائزز اور جنرلی ایکسرسائزز. ساری عورتوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ وزن جو ہے, اور اسپیشلی اگر پیٹ بڑا ہوگا تو وہ پیٹ جو ہے اس میں جتنی چربی ہے وہ آپ کے بچے دانی کو نیچے کی طرف پش کرے گی. تو ایک تو جو ہے زچگی کا پروسیس, اور دوسرا موٹاپا, اور تیسرا اگر قبض ہے تو یہ سب چیزیں بچے دانی کو ڈھیلا کرنے میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں. اور بلیو می, ابھی آپ کو نہیں پتا چلے گا لیکن 60 کے بعد آپ کبھی جا کے ہاسپٹل کی OPD میں بوڑھی عورتوں کی لائن دیکھیے جن سب کی بچے دانیاں باہر لٹک رہی ہوتی ہیں, اور وہ بیچاری پریشان حال آتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں. یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا چلتی, کیونکہ عورتیں یہ باتیں بتاتی بھی نہیں ہیں اپنے گھر والوں کو اور اپنے ہسبینڈس کو یا بیٹوں کو. اسی لیے میرا کہنا یہ ہے کہ خواتین پلیز, پنجابی میں کہتے ہیں رولا ڈالنا شروع کریں. ہر بات کا رولا ڈالیں گی تو زندگی کچھ بہتر ہو جائے گی. اگر نامناسب سلوک ہے, نامناسب خوراک ہے, کچھ بھی ہے, رولا ڈالیں. اپنی ہیلپ کے لیے ارد گرد کے لوگوں کو انوالو کریں. اس میں قطعی کوئی بےزتی نہیں ہے. بینگ اے وکٹم از ناٹ اے شیم. اگر آپ مظلوم ہیں تو اس شرم کی کوئی بات نہیں ہے. بینگ اے وکٹم آپ کو مدد لینی آنی چاہیے. اچھا, یہ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے جی. وہ کہہ رہی ہے I am 27 week pregnant, مجھے آج براؤن ڈسچارج ہو رہا ہے, از اٹ نارمل؟ دیکھیں یہ اتنے معمولی سوالات ہیں, یا آپ انٹرنیٹ پہ بھی فالو کریں تو آپ کو پتا چل سکتے ہیں. ڈسچارج ہو رہا ہے تو آپ کو کوئی انفیکشن ہو رہی ہوگی, آپ جا کے گائنیکولوجسٹ کو لوکلی ایگزامن کروائیں, اندر سے ایگزامن کرائیں, اور اگر کوئی ڈسچارج ہے تو اس کے لیے دوائی لیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ فیسلٹیز تو ہیں ہی نہیں, ہیلتھ انفارمیشن بھی نہیں. ہر کسی کو یہ پتا ہے کہ ہاں بس یہ بچے دانی ہے, یہ وجائنا ہے, اور یہاں سے پریگننسی ہونی ہے, بس. اس کے علاوہ
किसी को कोई चीज नहीं पता। तो आप जब तक मतलब सारे बैठ के कुकिंग शो जो है वो देख रहे होते हैं, फलाना मसाला ते फलाना गजाला बाजी दा कुकिंग शो ते मेयोनीज तो फलाना, आप लोग अपनी हेल्थ पे क्यों नहीं पढ़ते भाई? ये एक मुबशर अब्बास साहब कह रहे हैं आओ करें फजूल बातें, बिल्कुल आपको तो ये फजूल बातें लगेंगी ही, इसलिए कि ये आपके काम की नहीं है। आपके जिस्म को इन सारी चीजों से नहीं गुजरना पड़ता जिससे एक औरत गुजरती है। यू आर प्रिविलेज क्लास, सो बी इन द प्रिविलेज क्लास एंड प्लीज डोंट कम इनटू आवर एरिया, ओके, स्टे अवे प्लीज। अच्छा जी बताइए। अच्छा डॉक्टर तायरा, अगर आप रीड कर सके, ये एक कोई आई डोंट नो स्कूल सिस्टम का कोई सवाल आया हुआ है, मैं थोड़ा सा नजदीक की जी अच्छा उनका कोई सवाल। पहले एक और सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। वो किसी ने मुझे रिपोर्ट भेजी थी जिसमें उन्होंने हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी की अपनी रिपोर्ट भेजी थी और उन्होंने बताया था कि 4 साल से बच्चा नहीं है और इस वजह से लाहौर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में उनकी वो रिपोर्ट है। और उससे पहले भी उन्होंने अपनी ट्यूबल टेस्ट कराया था तो उन्होंने कहा थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होता, बेसिकली ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर ट्यूब जो है वो खुली भी नजर आए, डायलेट नजर आए और बेशक उसमें से पानी निकल भी रहा हो तब भी वो ठीक नहीं होती। और आपका जो लेप्रोस्कोपी का जो टेस्ट है वो ठीक नहीं है। आपके अंदर सारी अंतड़ियां वगैरह वगैरह बच्चेदानी के साथ जुड़ी हुई है और इतनी जुड़ी हुई है कि ओवरी और ट्यूब नजर भी नहीं आ रही। तो इतने जब अंदर से इंटरनल ऑर्गन्स जुड़ गए हों उसमें ओवरी उसमें बच्चा पैदा होना नॉर्मल तरीके से मुश्किल है। अच्छा आपको जो उन्होंने हल बताया है कि हम इन सारी चीजों को खोलेंगे या एडिशन, इसे एडिजोलाइसिस कहते हैं। एडिजोलाइसिस पुराना तरीकाकार है, बहुत पुराना, जब लोग इसको खोला करते थे जब टेस्ट ट्यूब बेबी इतना एडवांस नहीं था, क्योंकि एडिजोलाइसिस से दोबारा एडिशंस बन जाते हैं। जब वहां से एडिशंस तोड़े जाते हैं तो वो जो ऑर्गन्स की यानी आजाद की जो सरफेस होती है वो रफ हो जाती है और वहां से ब्लीडिंग होती है यानी ऊजिंग होती है और वो इतनी रफ होती है कि वो दोबारा जुड़ जाता है। तो एडिजोलाइसिस करने का कोई फायदा नहीं होता। उससे बेहतर ये है कि आप सीधा टेस्ट ट्यूब बेबी कराएं। आप जाके, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ओवरी से डायरेक्ट अंडा लेते हैं, स्पर्म लेते हैं और बाहर एम्ब्रियो बना के वापस आपकी बच्चेदानी में रख देंगे। तो एक दफा लेप्रोस्कोपी से आप गुजर चुकी हैं और हिस्ट्रोस्कोपी से, आप दूसरी कराने की कतई जरूरत नहीं है। ये इन्होंने चूंकि डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट भेजी थी तो मैंने कहा था कि मैं मैसेंजर में तो इतना लंबा नहीं समझा सकूंगी, मैं प्रोग्राम में समझा दूंगी। अच्छा मैंने यहाँ ये भी कहना है कि मैसेंजर में आप मुझे सवाल पूछते हैं, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं होता कि जिस तरह मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है मैं वहाँ बेतहाशा लोगों को इस तरह चीजें एक्सप्लेन करूँ। तो आप प्लीज अपनी चीजें इस प्रोग्राम के व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया करें ताकि मैं उसको इसी तरह एक्सप्लेन कर दूँ। जी अच्छा, ये राहीला यास्मीन का एक सवाल है। वो कह रही है 43 इयर्स इनकी एज है, बच्चे बहुत छोटे हैं, छोटा वाला बेटा 12 साल का है। आई हैव मल्टीपल यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, one is 6.5 centimeter. Doctor advised operation. Should I remove uterus or uterine something? Please answer. अच्छा वो ये है कि अगर इनको ब्लीडिंग नहीं हो रही और अगर फाइब्रॉइड्स के कोई प्रेशर सिम्टम नहीं है, ठीक है, फाइब्रॉइड यूट्रस से बच्चेदानी बड़ी हो जाती है उसमें, लेकिन बाद में साइलेंट फाइब्रॉइड्स रहते हैं कि यानी वो कुछ नहीं करते, ना उनका प्रेशर सिम्टम होता है और ना ही उनका ब्लीडिंग होती है, तब तो ये है कि ये मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं तो ये गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हें ब्लीडिंग ज्यादा होती है और अगर इनका प्रेशर सिम्टम्स हैं तो फिर यूट्रस निकलवा सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा वो कह रही है इसकी रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर, तो फिर आपको जब वक्त मिलता है तो फिर आप इसको देख सकते हैं। एक और सवाल है जी, मुझे कई बार सिस्ट हुए हैं
गोश्त वाले नहीं, फिर मेडिसिन लेके मैं ठीक हो जाती हूँ. अब मेरे फेस पे बाल आ रहे हैं, पेट भी बढ़ रहा है, मेरा वेट 96 पे चला गया है. जब मैं जिम जाती हूँ तो वो 86 87 पे आ जाता है. मेरी जॉब ऐसी है कि मेरा पूरा दिन कार में गुजरता है. मैं जॉब मुझे जैसी हो, मालूम करना था कि जैसी भी इसका होगी, इलाज गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती. दाना हो, अच्छा ये कोई और डिफरेंट सवाल सवाल है, लेकिन ये है कि जी जिनका 96 और 86 वजन, आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप गाड़ी में फिरें या जिस तरह मर्जी फिरें, बस आप समझें कि आप मुंह पे जिप लगाएं और खाना पीना बंद करें. आप ये सोचें कि लोग कहते हैं आप कुछ नहीं खाते वैसे ही वजन बढ़ता जाता है. ऐसा नहीं होता. आप अपनी कैलोरीज काउंट करें. एक खातून नॉर्मल जो यंग है उसको 18 से 2000 कैलोरी चाहिए होती है रोजाना. और अगर आप रोजाना कैलोरीज काउंट करें तो पता चलेगा कि आप 4000 कैलोरीज खा गए हैं. आप इतना जंक फूड और इतना कुछ कर लिया है. वो सारी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो बॉडी में चर्बी की सूरत में जमा होती हैं. और आपने खुद ही कह दिया कि पेट बड़ा हो रहा है वजन, तो वो चर्बी जो है वो सिस्ट भी बनाती है और वो चर्बी जो है वो मुंह पे बाल भी निकालती है. मेरा इस उम्र में 61 किलो वजन है और मैं बेहाल बैठी हूँ कि हाय अल्लाह मैं इसे कम कैसे करूँ. ठीक है, तो बात ये है वाला इतना वो जिसे कहते हैं स्ट्रेस लेती है, इतना अवॉइड करते हैं. लेकिन ये कि हम पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती. उस दिन मैं बीबीसी पे एक पैकेज देख रही तो उसने कहा कि एक पाकिस्तानी 73 लीटर घी या तेल कंज्यूम करता है एक बंदा. तो मैंने कहा ये और आपने उसमें वो मैंने भी देखा था, उसमें औरतें देखी थी कि हाँ वो फिर वो निहारी तो मजेदार होती है और हलीम भी मजेदार होती है, ठीक है, और पाए भी मजेदार होते हैं और समोसे भी फिर मजेदार होते हैं. तो फिर मैं हमेशा कहती होती हूँ कि या फिर मजेदारी रख लो या फिर जिस्म देख लो. ठीक है, आपकी जो मजेदार वाली चीज है ना वो सिर्फ ये है, ये बस. इसके नीचे उतरे तो सब जाए. अच्छा, मैं आयशा अली का सवाल इंक्लूड करी. वो कह रही है 27 ईयर्स की हैं, एक मिसकैरेज हो गया, एक बच्चे की पैदाइश, सेकंड डे डेथ हो गई, 6 मंथ से हस्बैंड के पास हूँ लेकिन कंसीव नहीं किया. मैं आई डोंट नो वो आगे कुछ लिख रही हैं. 2 मिलीग्राम्स ले रही हूँ, मुझे फर्दर क्या करना चाहिए? आई थिंक कोई मेडिसिन ले रही हैं. रिपोर्ट्स क्लियर हैं कह रही हैं. इंतजार जरूरी नहीं कि बंदा हर महीने कंसीव करे. वजन कम करें, एक्सरसाइजेस करें. हर खातून को ये याद रखना चाहिए कि घर का काम एक्सरसाइज नहीं है. आजकल तो इतनी फैसिलिटीज हैं, काश मैं भी यूट्यूब के जमाने में पैदा हुई होती. मुझे रह रह के आता है हाय मैं इतनी जल्दी क्यों पैदा हो गई थी. मैंने कोई जुम्बा लगा के उस जमाने में वो कर ली होती. ठीक है, जेन फोंडा अभी तक एक्सरसाइज करा रही है. मतलब इमेजिन यार, ये देयर इज नो एक्सक्यूज टू इट. बट कोई भी किसी वक्त कुछ भी कर. मेरा जी चाहता है अल्लाह मैं भी कोई जरा आजकल जमाने में पैदा होती, जब पैदा होते ही हाथ में मोबाइल फोन आ जाता और पैदा होते ही ये कुछ हो जाता, तो वो जो हम दूसरी तरह से चीजें ढूंढ के गुजारी, उसमें थोड़ी सी आसानी हमें भी मिल जाती. लेकिन मुझे ये लगता है कि जितनी ढूंढ के जिंदगी अच्छी गुजारने की कोशिश उस जमाने में हमने की, उसी ने बहुत चीजें सिखा दी. आज हर चीज आपके डोर स्टेप पे है और आप फिर भी मुझे नहीं पता कि मैं क्या चीजों से फायदे उठा रहे. ईमान फातिमा का कोई सवाल है, आई डोंट नो अगर आप पढ़ पाए. जनाना हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए तो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, प्लीज इलाज बता दें. हाय अल्लाह बेटी मेरी, इलाज इस तरह नहीं होता. और जनाना हार्मोन्स को रेगुलराइज करने का तरीका बता देती हूँ. इलाज है वो तरीका ये कि वजन कम करो. फिर मैं वही कहूँगी, मेरी एक ही रात है, वजन कम करो और एक्सरसाइजेस करो. तो ग़िज़ा में मीठा और ऑयल और कार्ब्स कम से कम, ठीक है, जितना कम. और कार्ब्स, सब्जियों में भी कार्ब्स होती हैं, तो वो तो आपने खानी ही है. तो बहुत सारी सब्जियां आपको कार्ब्स
सब्जियों से मिल जाएंगी। और उसके बाद जो ये आर्टिफिशियल ऑयल है जिसमें घी ऑयल कुछ भी, वो इतना ज्यादा उसमें कैलोरीज हैं, उसको अवॉइड करें। फिर सारे मीठे बोतलें, जूस, स्मूदीज, इन सब को अवॉइड करें, एक्सरसाइजेस करें। आप यकीन कीजिए जितना मैं हर किसी से कहती हूँ, सादा सालन रोटी की तरफ चले जाएं, सादा सालन रोटी जो हमारी अम्मियों के जमाने में होता था और हम स्कूल से आके खाया करते थे। देख लें स्किन अभी भी अच्छी है, शायद तुम्हारे का ये सही बात है। और ये जो वजन वाला जो आपने 61 62 रखा है, ये इट्स अ मैजिक, मैं सच बता रही हूँ। यार इट्स रियली मैंने 55 पे जाना है इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, पॉडकास्ट का वक्त खत्म होता जा रहा है। आखिर में अपने देखने वालों के लिए, क्योंकि आपको बहुत मिस किया गया था, बहुत से हमारे जो आपके रेगुलर देखने वाले, मैं शायद नाम भूल रही हूँ, एक लड़की ने तो मुझसे बहुत ज्यादा मैसेजेस करके पूछा था कि कहाँ है डॉक्टर ताहिरा, कहाँ है। मैंने कहा बीमार है, बट ये कहाँ गुम हो गई है। और अगले हफ्ते का बता दें कि आपने टाइम क्या देना है। टाइम यही वाला, क्योंकि अभी देखो ये सुबह 11 बजे थे जब अभी मैं यहाँ से ऑनलाइन हुई। तो अब ये हुआ कि मैं सुबह उठी, मैंने कहा जल्दी से नहा लूं, कोई थोड़ी बूथी भी संवार लूं। हालांकि कुछ नहीं किया, सिर्फ नहाई और उसको नाश्ता किया और एक लिपस्टिक। हाँ, लिपस्टिक खवातीन अच्छी लिपस्टिक्स लगाया करें, प्यारी लगने की कोशिश किया करें, अपने आप से मोहब्बत करें, शीशे में देखा करें अपने आप को, क्या करें, हाँ लिपस्टिक लगानी है अभी, ठीक है। तो और आखिरी ये कि रोला डाला करें। हाँ, चाहे आपको तंग करे, रोला डाल दिया करें। रोले पे तो मैं इतनी, अगर खवातीन आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप इतना रोला डालें कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए, ठीक है। ठीक है। और बल्कि गली में निकल जाए, छत पे चढ़ जाए और सारे मोहल्ले को बताएं कि इस घर में मुझे आज मार पड़ी है। मार खाना इज नॉट ए शेम, जो मारता है वो है असल मुझे, वो उसको शेम करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर ताहिरा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी ना। आई होप हमारी तीसरी पार्टनर हमारे साथ हो नेक्स्ट टाइम। और क्या, आज हम तस्नीम, हम आपको मिस कर रहे हैं। सीरियसली, बहुत ख्याल रखें। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।